Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope all of you are doing well. This is our third lecture for the Zoom online classes for class 5 and the subject is science. In the previous lecture we learnt about the parts of the brain, its functions, we learnt about the nerves and its types, and we also learnt about the reflex section. In today's lecture we are going to learn about the details and the structure of the sensory organs. There are 5 senses in our body. Senses are very important because sensation is one of the main characteristics of the living things, by which we can differentiate the living things from the non-living things. So these sensations or these senses, they help us in different ways. Like they help us in detecting the dangers, in detecting the food, and finding the different colors, and recognizing the different voices. So a human being is blessed with 5 senses. These are the sense of sight, sense of hearing, sense of taste, sense of touch, and sense of smell. For this purpose, we are also blessed with some 5 special organs, and those special organs are called the sensory organs because they help in detecting these 5 senses. Eyes are the sensory organs for the sense of sight. They help us in seeing anything, in distinguishing between different colors and different objects. Ears, we have got a pair of ears and they help us in hearing. Tongue, help us in tasting the different foods. Skin, which is the largest organ of the human body, it helps us in touching, or it helps us in distinguishing between the different textures or different touch, like the soft touch, hard touch, rough objects. It's all possible because of the skin. Nose is the sense organ for the sense of smell, like we are able to differentiate between different smells, good smell and bad smell. It's possible because of this sensory organ, which is called the nose. Dear students, let us study the details of all these 5 senses. The first sense organ is the eyes. We are provided with a pair of eyes. They are located in the skull. Skull में हमारे head portion में 2 eyes ऐसे मौजूद होते हैं that we are able to see the things with the different dimensions. If we look at the eye from the front, तो आपको आँख ऐसे दिखेगी. सबसे पहले यहाँ पर आपके पास होते हैं छोटे छोटे very small hairs, and they are called the eyebrow. The eyebrow not only beautify your face, आपके face को beauty के साथ साथ ये इसका जो main function होता है, it protects your eyes from the dust. Like जितने भी dust आते हैं, they get entangled in the hairs which are in the eyebrows. Then comes the eyelid. Eyelid is that part which you mostly close and open, and this closing and opening of the eyelids, this is called the blinking. ब्लिंकिंग आपको पिछले टॉपिक में एक्सप्लेन किया था कि इट इज़ द एग्जांपल ऑफ अ रिफ्लेक्स सेक्शन, मतलब ये इनवॉलंटरी एक्शन है, ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता. और ये ब्लिंकिंग जो होती है ये भी आपके आँख को नम करके रखती है, वेट रखती है, ताकि आपके आँख में कोई भी डस्ट या आउटर बॉडी ना चली जाए. दिस कलर्ड पार्ट इज़ कॉल्ड द आइरिस. कुछ लोगों का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द आइरिस. दिस इनर पार्ट, ये जो ब्लैक एरिया होता है, दिस इज़ कॉल्ड द प्यूपिल. And these are the small hairs which are present on the upper lid and the lower lid, दोनों में होता है. These are called the eyelashes. Eyelashes भी आपकी आँख को खूबसूरती के साथ साथ protection provide करती है from dust and from other things, so that they might not enter into your eye and protect us from danger. When you open the eye, तो अगर आप आँख को स्कल से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि आपकी आँख तो आपके स्कल के छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें आई सॉकेट्स कहते हैं, उसके अंदर महफूज होते हैं. बट इफ़ यू पॉप इट आउट फ्रॉम दोज आई सॉकेट्स, तो आपको ये बिल्कुल एक बॉल की तरह नज़र आता है, एंड इट्स अ लिक्विड फिल्ड बॉल. इसको आई बॉल कहते हैं. ठीक है, इसके सामने वाला जो पार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड कॉर्निया. कॉर्निया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए ट्रांसपेरेंट होता है सो दैट लाइट कैन एंटर इनटू इट वेरी इजीली. देन कम्स दिस कलर्ड पार्ट. कलर्ड पार्ट आइरिस जो होता है ये अटैच्ड होता है मसल्स के साथ. ठीक है,
फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा आता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल बिल्कुल एक विंडो की तरह काम करता है, जिस तरह एक डार्क रूम होता है और इसमें एक छोटा सा वेंटिलेटर या विंडो लगा होता है फॉर द एंट्री ऑफ एयर इनटू इट, या लाइट अंदर आए उसके लिए एक छोटी सी खिड़की होती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये आईबॉल भी एक बंद कमरे की तरह डार्क होता है, इसके अंदर लाइट आएगी तभी जाके हमें कोई चीज़ नज़र आएगी। लाइट के अंदर जाने के लिए यहाँ पर छोटा सा होल होता है, इसको प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है डिपेंडिंग अपॉन द लाइट इंटेंसिटी। अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस लाइट है तो ये प्यूपिल श्रिंक हो जाता है साइज़ में, ताकि कम से कम रोशनी अंदर जा सके। अगर आपके पास बहुत डार्क एरिया होता है तो उस केस में फिर आपका प्यूपिल बड़ा हो जाता है साइज़ में, और फिर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी अंदर आ सके एंड वी आर एबल टू सी एनीथिंग। उसके बाद इसके बैक साइड पे आपके पास होता है सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ ट्रांसपेरेंट लेंस। लेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई, बिकॉज जो भी लाइट अंदर आती है वो इधर से डेविएट होके पीछे की तरफ जाके इस आँख के पर्दे पे एक इमेज बनाती है, ठीक है, तस्वीर बनाती है, वो उल्टी तस्वीर होती है। उसके बाद इस उल्टी तस्वीर को हम सीधा कैसे देखते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ द नर्व्स विच आर कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व्स। Optic word is associated with the eye. These nerves have a connection with the brain and it is the brain which let us know कि आपने कौन सी चीज़, कौन सा कलर देखा है। The third sensory organ is the sensory organ for smell, which is the nose. नोज़ हमारे पास जो होता है वो स्मेल को डिटेक्ट करने के काम आता है, और इसके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें ऑल्फैक्टरी सेल्स कहते हैं। ऑल्फैक्टरी सेल्स इन नॉस्ट्रल्स के अंदर होते हैं एंड दे सेंड द मैसेज ऑफ द डिफरेंट स्मेल्स टू द ब्रेन। इट इज़ द ब्रेन विच लेट अस डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गुड एंड अ बैड स्मेल। एक्चुअली स्मेल्स जो होते हैं दीज आर द डिफरेंट केमिकल्स विच आर स्प्रेड आउट इन द एयर। हवा में आपके पास ये केमिकल्स होते हैं, और इन केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे नोज़ के अंदर जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल्स में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और वो सेल्स फिर मैसेज सेंड करते हैं हमारे ब्रेन को। इट इज़ द ब्रेन विच लेट अस नो कि कौन सी चीज़ है का स्मेल हमने सूंघा है। उन सेल्स को कहते हैं ऑल्फैक्टरी सेल्स। क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी सेल्स। The nose not only help us in detecting the different smells, but it also help us in breathing. Then the third sensory organ is called the tongue. Tongue not only help us in detecting the different taste, but it also help us in talking. तो इसके दो functions हैं। इसके this is the strongest muscle of our body. इसके अंदर जो cells होते हैं जो हमें different tastes के बारे में बताते हैं, they are called the taste buds. What are they called? Taste buds. And the taste buds, they are different taste buds which are scattered on your tongue. The taste buds for the salty taste is present at the tip of your tongue. Just above the salty taste we are having the taste buds for the sweet substances, जैसे हो गए chocolates, जैसे cakes हो गए, जितने भी मीठी चीज़ें आप खाते हैं उसके taste buds जो होते हैं वो salty taste buds से थोड़े से ऊपर होते हैं। खट्टी चीज़ें जो आप खाते हैं like lemons, इमली, ठीक है, ऑरेंजेस, कच्चे आम, इन सब का जो वो खट्टा टेस्ट आता है, दे आर डिटेक्टेड बाय द सावर टेस्ट बड्स विच आर प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द टंग। एंड द बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट जिसको कहते हैं, जैसे करेला हो गया, जैसे आपके पास मेडिसिन्स जो होते हैं, मोस्टली मेडिसिन्स दे आर वेरी बिटर, तो जब आप उनको पी लेते हैं, वंस यू स्वेलो इट ओनली देन यू कैन डिटेक्ट दैट बिटर टेस्ट एट द एंड ऑफ योर टंग। तो एंड पे क्यों आ जाते हैं, बिल्कुल आखिर में क्यों होते हैं? बिकॉज इनके टेस्ट बड्स आपके बिल्कुल एंड पे मौजूद होते हैं। इन चारों के अलावा एक और फिफ्थ टेस्ट भी है, इसको कहते हैं उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट बिल्कुल ऐसा होता है जैसे जूसी मीट आप खाते हैं, जैसे आप गोश्त वगैरह खाते हैं, उनका जो टेस्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड द उमामी टेस्ट। द फोर्थ सेंसरी ऑर्गन इज़ कॉल्ड द ईयर। ईयर के भी दो फंक्शन होते हैं। इट हेल्प्स अस इन हेयरिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग द डिफरेंट वॉइसेस। इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन बैलेंसिंग। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। दिस इज़ द आउटर ईयर, ये जो बाहर का कान होता है जैसे आपको नज़र आता है, इसको कहते हैं पिना, PINNA, पिना। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द पिना।
pinna goes inside a canal. This is called the ear canal या auditory canal. Auditory word is derived from audio, सुनना. So this audio is the word which is associated with the ears. बिल्कुल इसके एंड पे आपके पास एक छोटा सा पतला सा पर्दा लगा होता है, लेयर होता है, इसको कहते हैं ईयर ड्रम, जिसे हम कहते हैं कान का पर्दा. इस कान के पर्दे के साथ आपके बॉडी के सबसे छोटे तरीन स्मॉलेस्ट बोन्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड द हैमर, सेकेंड इज़ कॉल्ड द एनविल, थर्ड इज़ कॉल्ड द स्टिरअप. इनके शेप्स हैमर और एनविल और स्टिरअप की तरह होते हैं. हैमर हथौड़े को कहते हैं, एनविल उस चीज़ को कहते हैं जिस पे हथौड़ा मारा जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, मेटालिक, ठीक है. और स्टिरअप जो होता है ये आपके पास जब घोड़े पे आप चढ़ते हैं तो उसकी कमर पे एक बैग लगा होता है, जहाँ पे आप अपना पाँव रख के हॉर्स की बैक पे चढ़ते हैं, उस जगह को कहते हैं स्टिरअप, राइट. दीज 3 bones are the smallest bones. It is attached to a very round and round object. It is called the cochlea. आपको जो भी चीज़ सुनाई देती है, it's all because of the cochlea. Cochlea snail की तरह एक स्ट्रक्चर होता है और ये लिक्विड से भरा होता है. Semicircular canal helps us in balancing our body, right? And these are the nerves. These nerves are attached to the brain. It is the brain which let us know about the different sounds. They are called the auditory nerves. That's all for today, dear students. Hope you liked today's lecture. We'll meet in the next lecture. Till then, take care.